Good morning children. So beta, in this class we are going to learn that how to convert the numbers from other number system to the decimal number system. Me children, we have to see that how can we convert a number from binary, octal or hexadecimal number system to its decimal equivalent. Okay, so we will learn all these things step by step. So the first problem I take like this. Suppose a problem is given like this. A binary number is given and we have to find its decimal equivalent. Okay, a binary number is given 11011 and we have to convert it on the base of 10. Okay, so children, what should be the procedure? So I tell you two methods for this. So children, in the first method what we have to do, we have to write down the given binary number like this 11011, and after that what you have to do beta, you will do the numbering of the digits of this number. How? I tell you, for example, and this numbering should start with 0 and from right to left like this: 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so that you know that the number is having 5 digits, so you will mark them from 0 to 4 from right to left hand side. Okay, and children, I tell you that these numbering which you marked upon these digit, they actually represent the power. Okay, power of 2. Why 2? Because this number belongs to the binary number system and it has the base of 2. Now how you have to solve this? I show you that how to solve the first digit, and you will start it from the right. But at the right, the value of the digit is 1, so you will write it like this: 1 into, and see the number is upon this digit is 0, so you will write it 2 raised to the power 0. Okay, after that move to the second digit, it is given 1 1. Okay, so 1 into 2 raised to the power 1. Then look at the third one, it is 0 into, and the number upon 0 is 2, means 2 raised to the power 2. Then 1 1 into 2 raised to the power 3, and then last one is 1 and the number above this is 4, so 1 into 2 raised to the power 4. Okay, so children, now you have to calculate them and add the results. How? 2 raised to the power 0 is 1 into 1, that is equal to 1. Then 2 raised to the power 1 means 2. 2 into 1, it is 2. 0 into anything, 0. 2 raised to the power 3, 8. And 2 raised to the power 4 is 16. Okay, so now children, you have to add all this and your answer will appear as 27, and it is your answer children. Okay, so your final answer is 27 on the base 10. ठीक, तो ऐसे बेटा, यानी कि ये जो बाइनरी नंबर दिया गया था मुझको 11011, इसका जो डेसिमल एक्विवेलेंट है वो कितना होगा? 27 ऑन द बेस 10. इसी को बेटा करने का एक और मेथड है, आप कैसे कर सकते हो? आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है, सपोज द नंबर इज गिवन 10101. ओके, तो द फर्स्ट स्टेप विल रिमेन द सेम, कि बेटा जो भी नंबर दिया गया है आपको, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, और इसको आपको 10 के बेस पे कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए? वही सेम प्रोसेस रहेगी. अभी पहला स्टेप सेम रहेगा, राइट डाउन ऑल द digits of the number 10101, and after that you will mark its digit from right to left: 0, 1, 2, 3 and 4. And after that children, you can solve all these individual digit. How? Look at the first one, 1, और इसके ऊपर जो नंबर है वो 4 है, तो क्या हो जाएगा? 1 into 2 रेज टू द पावर 4. ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि ऊपर ये जो नंबरिंग की है, दे रिप्रेजेंट द पावर ऑन द बेस. तो बेस 2 है, तो यानी कि ये जो 4 है तो 2 की पावर 4, तो 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, प्लस फिर सेकंड क्या है? 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 3. देन 1 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. ठीक है, फिर 0 है, 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, और फिर सबसे लास्ट में 1 है, 1 इंटू 2 raised to the power 0. ठीक है, and now you have to solve this. 2 raised to the power 4, that is 16, प्लस 0 इंटू 2 raised to the power 3, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आएगा. ठीक है, 2 raised to the power 2 4, प्लस 0 इंटू तो 0 ही होगा, और फिर 1 इंटू 2 raised to the power 0, that is 1. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21. ठीक है, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया 21 ऑन द बेस 10. ओके, तो आई होप कि ये आपको यहाँ पे
क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे एक बाइनरी नंबर को डेसिमल के बेस पे कन्वर्ट करेंगे। और आपको बताएं कि यही सेम लॉजिक बेटा आपके जो अदर कन्वर्जन है वहाँ पे भी ऐसे ही अप्लाई करने हैं। कैसे, मैं आपको शो करता हूँ एग्जाम्पल। सो नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट अ ऑक्टल नंबर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, एक ऑक्टल नंबर लेते हैं और उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल। तो आई टेक वन एग्जाम्पल। सपोज बेटा ये एक नंबर दिया गया है 753 ऑन द बेस ऑफ 8 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे आप, वही सेम टेक्निक बेटा यूज करनी है। ठीक है, जो नंबर दिया है 753, ठीक, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट में जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 एंड 2। ठीक, और जब मार्किंग हो जाएगी इसके बाद अब आप इसको पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे जो सबसे राइट में जो यहाँ पे दी गई है डिजिट दैट इज 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 0। ठीक है, आपकी बार ध्यान दीजिए बेस आपका 8 है, तो ये जो पावर रेज होंगी वो 8 के ऊपर रेज होंगी। फिर ऐसे 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 1, यहाँ पे 5 के ऊपर 1 है। देन 7, ठीक है, 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो यानी 1 इंटू 3 योर आंसर विल बी 3। फिर इसके बाद 8 रेज टू द 1, 8 5 या 40 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 448। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, 8, तो आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आ गया 491। तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 491, सॉरी 491 ऑन द बेस ऑफ 10, यानी कि कोई एक नंबर अगर आपको दिया गया ऑक्टल में 753, ठीक है, 8 के बेस पे, तो ये जब 10 के बेस पे हो आएगा तो 491 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये आपका यहाँ पे हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे चेक किया। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हो, हेक्सा कोई नंबर अगर आपको हो, ठीक है, कोई अगर आपको हेक्सा में नंबर दे दिया जाए तो वो कैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, ये भी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज वन प्रॉब्लम इज गिवन लाइक दिस AE5। ठीक है, AE5, और ये बेटा नंबर किस पे है 16 बेस यानी हेक्साडेसिमल नंबर है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो बेटा AE5 मीन्स द नंबर इज हैविंग 3 डिजिट्स। ओके, तो आप पहला काम क्या करोगे, वही जो आपको बताया गया था कि AE5, इन तीनों नंबर्स को आप यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिए पहले डिजिट। फिर आप क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे मार्किंग करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो ये मार्किंग आपकी हो जाएगी यहाँ 0 1 एंड 2, और आपकी बार जो बेस आप यूज़ करोगे वो 16 का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये पहला क्या है 5 इंटू 16 रेज टू द पावर 0। सेकंड है आपका ई। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो ई है ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और वो कौन सी डिजिट है आपकी 14। ठीक है, तो ई नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, जब कैलकुलेशन करोगे तो ई को क्या लिखोगे 16 लिखोगे। ठीक है, तो 16 इंटू, सॉरी, ई जो है 14 को रिप्रेजेंट करता है, तो ई को आप 14 लिखोगे और ये क्या हो जाएगा 16 रेज टू द पावर 1। ठीक है, इसके बाद फिर ए है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा 10 को, तो 10 इंटू 16 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो ये ऐसे आपने यहाँ पे सारी अपनी कैलकुलेशन मार्क कर ली। अब आपको बस खाली इसको सॉल्व करना है। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, या चाहें तो मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 16 रेज टू द पावर 0 इज़ 1 इंटू 5 दैट इज़ 5। ठीक है, इसके बाद 16 इंटू 14, तो ये आपका कितना हो जाएगा 224। ठीक है, और फिर 16 स्क्वायर इट इज़ 256 इंटू 10 यानी कि 2560। ठीक है, और अब आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पे अपेयर हो गया 2789, 2789। ये आपका जो है 10 के बेस पे है, यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ AE5 16 के बेस पे, ठीक है, और आपको इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस होगी, और मेरा जो आंसर आएगा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इन द लास्ट 2 क्लासेस चिल्ड्रन वी हैव लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट द नंबर्स टू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट द decimal numbers to other number system. Okay, so now children, in the third part of this topic we will learn that what to do if the decimal number system is not in between. For example, suppose if a number is given in octal form and we have to convert it into its binary or hexa, or a hexa number is given and we have to convert it into binary or octal. Okay children, means no decimal number system is involved anywhere. Okay, so this we will learn in the next class. For today children, thank you very much.